Hello students, this is Hardik sir and we will resume our part 3 of history lesson number 4, the Mughal Empire of standard 7. So we have already completed both the parts. We have seen about the Mughal administration, Mughal campaigns and everything with the previous both the videos. So if you have not gone through those parts, I request you to watch both the videos very carefully. After that only you should start with this third video, and before even you start with this third video, I request you to read the entire lesson from the textbook if possible, or else after completion of this video please go through the lesson once, at least once, very carefully. In this video we will be starting from Akbarnama and Aine Akbari, as you can see from the title itself. So Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. So Akbar ordered Abul Fazl to write about the history of his rule. So Abul Fazl actually wrote about in 3-volume book, and that history was about Akbar's rule, about Akbar's reign, and it was titled as Akbarnama. So Akbarnama was a book of 3 volume. The first volume dealt with Akbar's ancestors. So in the first volume it is an introductory part about Akbar's ancestors, and the second volume recorded the events of the Akbar's reign. So in second volume you will find about the ruling part of the Akbar, and the third volume, that is Aine Akbari. So as you can be asked by both the means, who wrote Aine Akbari or who wrote Akbarnama, the writer for the both was same, that was Abul Fazl. But you should understand that the third volume of Akbarnama is known as Aine Akbari. So Aine Akbari does not mean that Akbarnama and Aine Akbari are the same thing. That is the part of Akbarnama. Aine Akbari is a part of Akbarnama. So it deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire. So that is about, in the third volume Aine Akbari, it is given about his household, army, administration and all the other affairs, you can understand. It also provides rich details about the traditions and culture of the people living in India. So we can find even the tradition of the people of those time and about the culture of the people of India during that particular period of time. And the most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. So these all diverse details, statistical means all the figures, all the numbers are also mentioned in this particular book. So that is the most interesting aspect of Aine Akbari. In this picture you can find Akbar receiving the Akbarnama from Abul Fazl. So here you can find in the picture also in figure number 7. Now you will find the title, that is a closer look, that is about Akbar's policies. So we will find some more information about Akbar's policies, because whatever the policies were designed by Akbar, that lasted up to the many rulers, means they followed the administrative skills, administration, the governance, which were taken care by Akbar, the way it was taken care by Akbar. And that's why we are also studying history. So the same thing, when you also would be in the part of administration, you also should read about the previous rulers, how they have ruled. For an example, if you are going to be, or if you will be a manager of a company in future, then you should know what previous managers have done. So you will come to know about do's and don'ts being a manager of the company. So you must look into the history of the company for that. And here we are also looking at the history. So history is always repeated, and that's why we are studying history. We are not studying it simply for marks. We are studying history for our own development. So as we come to know about Akbar's policies, so the broad feature of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book the Akbarnama, and particularly we can say in the last volume, that is Aine Akbari. So as we have seen previously that about the administration, it was given in Aine Akbari, that was the third volume of Akbarnama. In that volume, Abul Fazl has explained that
द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रोविंसेस, हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया पूरे एम्पायर को, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. So if you also can come to know that in a school there are number of students studying and they are also divided with number of divisions like A, B, C or D. So by the same way the entire empire was divided into different provinces और इन हिस्सों को सूबा you can understand the word उसे जाना जाता था. And that सूबा was governed by सूबेदार. So सूबेदार was a person who carried out both political and military functions, but he himself was not the only person to take care of both the things. He had a number of officers assisting him. तो सूबेदार जो पूरे सूबा को यानी कि पूरे एक प्रोविंस को गवर्न करता था by both the means, that is political and by military functions, and for that सूबेदार was assisted by several officers. So each provinces had a financial officer and that financial officer was known as Diwan. So there can be a question for 1 mark, that who was a financial officer assisting Subedar, or what was the financial officer during Akbar's reign known as. So that can be Diwan. For the maintenance of peace and order in his province, the Subedar was supported by other officers such as, you can find number of list, that is military paymaster, for law and order we can say, for maintenance of peace and order. So there was a military paymaster, that is Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patronage जो थे सद्र, मिलिट्री कमांडर्स वो होते थे फौजदार, एंड टाउन पुलिस कमांडर जिन्हें कोतवाल से जाना जाता था. सो दे वर द पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड. विद द नेक्स्ट यू कैन फाइंड द फिगर अबाउट द नूर जहाँ's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट. सो नूर जहाँ के एक फरमान का यहाँ बाजू में आपको पिक्चर दिया हुआ है, अलॉन्ग विथ बोथ द सील्स यू कैन फाइंड हियर वॉट एवर इज़ रिटन एज इट इज़ गिवन इन इंग्लिश ऑल्सो हियर. सो मेहरुनिसा, नाम आप बराबर ध्यान से समझिएगा, मेहरुनिसा, जिनको टाइटल दिया गया नूर जहाँ का, जिनकी शादी हुई एम्परर जहांगीर से इन 1611 में. सो मेहरुनिसा मैरिड एम्परर जहांगीर in 1611 and received the title Noor Jahan. She remained extremely loyal and supportive to the monarch, यानी राजा को extremely loyal थे वो, supportive थे, and as a mark of honor उन्हें सम्मान के लिए जहांगीर struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other the inscription, दूसरी तरफ जो inscription दिया गया, एक तरफ आप समझ सकते हैं कि जो जहांगीर ने his own titles, that was on the one side, and on the other side struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan. So this is the importance you can understand. Here also we are having the document which is an order, that is Farman, as we have seen in figure 8. You can find in your book also, you will find this. The square seal states command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan Pad Shah Begum. So you can find with this Farman also. The round seal, as you can see in the picture, जहाँ लिखा गया है by the son of Shah Jahangir she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan Pad Shah be the lady of the age. So ये सभी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी गई है. सो इससे हमें पता चल सकता है, वी कैन एटलीस्ट कम टू नो अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ नूर जहाँ, कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंसिव लेडी रही होगी. एंड एज इट इज़ गिवन शी वॉज एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव ऑल्सो टू द एम्परर. यहाँ आपको यू विल फाइंड दी टू वर्ड्स अननोन, डोगमा एंड बायगुर, बट वी विल बी रीडिंग दिस वर्ड्स after the first completion of the first paragraph, because you can find here with the second paragraph and you will find these two words. So before going to there, let us start with the previous part itself. We are here joining now with the upcoming paragraph. So Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue. You can understand this. So large army तो था और बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू का भी उनके पास आता था, अकबर के नोबल के पास जो उन्हें कमांड करते थे. While they were loyal, the empire functioned efficiently. But by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own.
So we can understand by the 17th century, up to 17th century they were loyal, but by the end of the 17th century इन्होंने अपने अपने खुद के नेटवर्क खड़े करना शुरू कर दिए. देयर लॉयल्टीज टू दी एम्पायर वर वीकंड, यानी अब ये इतने लॉयल नहीं थे बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अब वो खुद की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा ध्यान देने लगे थे, यानी अब वो पहले जितने लॉयल नहीं है. वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग द 1570s, 1570 के दशक के आसपास की ये बात है, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे. ही स्टार्टेड डिस्कशंस ऑन रिलीजियन विद द उलमा, ब्राह्मिन्स, ज्यूजिट प्रीस्ट एंड हु वर द रोमन कैथोलिक्स, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो विद द जोरास्ट्रियंस. यानी इन सभी के साथ, ये सभी अलग अलग रिलीजन के गुरुस माने जाते हैं, लर्नेड पीपल माने जाते हैं, जिनके साथ अकबर ने डिस्कशन शुरू किए. एंड दिस डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना. अल्टीमेटली नाउ व्हाट एंडेड विद द इबादत खाना, यानी इबादत खाना वॉज फॉर ऑल रिलीजन. हियर देयर वॉज अ स्पेस फॉर ऑल द रिलीजन्स. सभी रिलीजन को इक्वल सम्मान दिया गया था. ही वॉज इंटरेस्टेड in the religion and social customs of different people. अकबर जो खुद इंटरेस्टेड थे in the religion and social customs of different people, जो उनसे काफ़ी अलग थे. अकबर्स interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized the ritual and dogma were often bigots. सो अकबर को जो ये इंटरेक्शन हुआ, उनकी बातचीत हुई, जो अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजियन के स्कॉलर लोग थे, जिनसे उन्हें पता चला कि हु एम्फोसाइज्ड, इनका दबाव किस दो चीज़ों पे था. सो दे एम्फोसाइज द रिचुअल्स एंड डोगमा दैट यू कैन अंडरस्टैंड वर ऑफन बाय गोड्स. तो ये दोनों वर्ड क्या कहना चाहते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सो पहला कहता है डोगमा दैट इज़ अ स्टेटमेंट or an interpretation declared as authoritative with the expectation that it would be followed without question. Without any question, any social custom or religious rituals, कोई सवाल के बगैर. A statement, it has to be followed, means strictly it has to be followed. So that is what it wants to say, that is dogma, जहाँ कोई सवाल नहीं उठाया जाता है. लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि ये चीज़, ये कस्टम, ये रिचुअल क्यों कर रहे हैं, तो जहाँ ऐसा कोई सवाल ही नहीं था. सो दैट इज़ नोन एज डोगमा, जिसको एम्फोसाइज किया गया है बाय द स्कॉलर्स. दूसरा आप देख सकते हैं वर्ड बायगोट. सो दैट इज़ एन इंडिविजुअल, ये पर्सन है, ये बंदा है, हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर. यानी दूसरे लोगों के रिलीजियस बिलीफ और कल्चर को ये सह नहीं सकता है, हु इज़ इनटॉलरेंट. हालांकि वी हैव टू बी टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर्स रिलीजियंस, अदर्स कस्टम्स. आज का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात सिखाता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स एम्फोसाइज्ड ऑन रिचुअल्स, डोगमा एंड दैट वर ऑफन बाय गोड्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. द टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स and disharmony amongst his subjects. और इन्हीं के टीचिंग्स की वजह से आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में डिवीज़न पैदा हुआ, डिसहार्मनी पैदा हुई. एंड दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस. यूनिवर्सल पीस हर जगह पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ शांति होनी चाहिए. एंड दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, यहाँ आप देख सकते हैं आइडिया ऑफ टॉलरेंस. वी हैव टू बी टॉलरेंट टू अदर रिलीजियंस, अदर कल्चर्स, द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, वी हैव टू बी. सो दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस इन हिज रेल्म. यानी अकबर का जहाँ शासन था वहाँ की बात है. सो वहाँ ये आइडिया ऑफ टॉलरेंस जो लोगों को सिखाना है ताकि यूनिवर्सल पीस, लोगों में शांति बनी रहे. इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स.
सिस्टम ऑफ एथिक्स, आप समझ सकते हैं एथिक्स आपके जीवन के कुछ सिद्धांत होंगे। सो वो ऐसे सिद्धांतों के ऊपर फोकस किया गया जिसमें ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस वगैरह आता है, जो सब रिलीजन सही सिखाता है। कोई रिलीजन, कोई कल्चर गलत चीज़ें कभी नहीं सिखाता है। सो बाय द सेम वे यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया गया, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो हमेशा हमेशा और हर जगह एप्लीकेबल होता है। अबुल फजल ने इसलिए उन्हें हेल्प भी किया इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। सो फॉर दिस यूनिवर्सल पीस, किस तरह से सब फ्रेमवर्क होना चाहिए, दैट वाज हेल्प्ड बाय अबुल फजल, एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। ये इनके द्वारा भी किया गया। यहाँ जहांगीर का लिखा हुआ आप देख भी सकते हैं, सुलेकुल, और जहांगीर ने जो अकबर के बेटे थे, उन्होंने ये उनके पिताजी की पॉलिसी को कौन से वर्ड्स में तराशा है। सो यू कैन फाइंड एज इन द वाइड एक्सपांस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज़ रूम। डिवाइन कंपैशन, जो दया की भावना डाली गई है, देयर इज़ रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स। देयर इज़ रूम फॉर ऑल क्लासेस, क्या कहना चाहते हैं कि देयर इज़ अ स्पेस फॉर एवरीवन, सब के लिए जगह है यहाँ पे, कोई बाहर नहीं है। इन हिज इम्पीरियल डोमेनियंस एज यू कैन सी, विच ऑन ऑल साइड्स वर लिमिटेड ओनली बाय द सी, यानी हर जगह दूर दूर तक यहाँ सबको इक्वल जगह दी गई है। देर वॉज रूम फॉर द प्रोफेसर्स ऑफ ऑपोजिट रिलीजियंस एंड फॉर बिलीव्स गुड एंड बैड, एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज्ड। सो इनटॉलरेंस को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे सबके लिए जगह है, ऑपोजिट रिलीजियंस, अलग अलग भावनाएं लोगों की जो बिलीफ है उनके लिए है, अच्छे बुरे सब के लिए, पर इनटॉलरेंस के तरफ जाने वाले रास्ते बंद है, यानी लोगों को टॉलरेंस सिखाया गया। सुन्नीस एंड शिया यहाँ एक ही मॉस्क में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। क्रिश्चियंस एंड ज्यूज जो भी एक ही चर्च में प्रे करते हैं। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ universal peace, that is Sulekul. Here you also can find some more information about the translation of different books. Akbar commissioned the translation of many Sanskrit works into Persian. यानी बहुत सारी ऐसी संस्कृत की किताबें थी जिनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया। मकतब खाना, जिसे ट्रांसलेशन ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, समझ सकते हैं आप, was also established at Fatehpur Sikri. यानी where was this translation bureau established? So it was established at Fatehpur Sikri. The Mahabharat, Ramayana, Leelavati and Yog Vashisht were some of the notable Sanskrit works that were taken up for translation. तो इन सभी संस्कृत बुक्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया। द रजमनवा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, जो ये संस्कृत का महाभारत, उसको ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में, एंड दैट इंक्लूड्स द लेविश इलस्ट्रेशंस। लेविश यानी एक रीच तरह से, काफ़ी बढ़िया तरह से हर एक इवेंट को, महाभारत की हर एक इवेंट को इसमें भी इलस्ट्रेट किया गया है, यानी दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है। सो इतना बेहतर तरीके से उसे भी ट्रांसलेट किया गया। Now we are with the last part of the lesson, that is the Mughal Empire in the 17th century and after. So as we have seen in this video itself that up to 17th century we have seen about the loyalty and everything, but slowly and gradually as these officers for their self interest, जहाँ loyalty कमज़ोर होती गई और अपने अपने own area of interest बढ़ते गए. So we have seen this. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी होने की वजह से ही ये एम्पायर काफ़ी प्रॉस्परस हुआ बाय बोथ द मीन्स। यू कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिकली, कमर्शियली यहाँ बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। International travelers described it as the fabled land of wealth. Famous, very famous land of wealth. जो international travelers आए हैं, they have described it as. But कुछ travelers, the same visitors,
जिन्होंने ये भी नोटिस किया है, दे अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, यानी यहाँ इतना वेल्थ तो था ही, ऑब्वियसली देयर वाज अ ह्यूज ग्रोथ, पर उसके साथ साथ the state of poverty also existed, the greatest opulence. So you can understand there was a rich difference, a very good difference. You can find a notable difference between the rich and poor. The inequalities were glaring, जो सीधी दिख रही थी inequality, यानी ग्रोथ था, टू बी अग्री वी हैव टू, कि ये फेमस ही वेल्थ की वजह से था, बट एक तरफ जितना रिच लोग दिख रहे थे तो साइड बाय साइड वहीं कुछ इतने गरीब उतने पुअर, पॉवर्टी भी यहाँ क्लियर विजिबल थी. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ's reign inform us the highest ranking मानसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर, केवल 445. टोटल कितने आपको गए हैं? 8000 थे. यानी अगर 8000 का हम परसेंटेज निकालें तो केवल ये 445 होने के लिए 5.6% होते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मानसबदार. सो टोटल नंबर ऑफ मानसबदार 8000, यू कैन अंडरस्टैंड, जिसमें से हाईएस्ट रैंकिंग वाले देयर वर 445, दैट इज ओनली मियरली अ 5.6% who received the 61.5% of the total estimated revenue of the empire. यानी ये 5.6 मानसबदार ऐसे थे जिनके पास 61.5% रेवेन्यू आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकी के जो भी बचे मानसबदार, ऑब्वियसली उन्हें यहाँ का बचा हुआ ही रेवेन्यू मिलता है. सो जो आपको ऊपर बताया गया है कि एक तरफ रिच वेल्थ एंड द ऑपोजिट वे उतना ही पॉवर्टी यहाँ पे देखने मिला है. द मुगल एम्परर्स एंड देयर मानसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मुगल एम्परर्स और उनके मानसबदार थे, जो बहुत बड़ा खर्चा उनकी इनकम का जो था, that was a great deal of their income on salaries and goods, जिसके ऊपर ये किया करते थे. and this expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. so रिटर्न तो आ रहा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, but the scale of revenue collection left very little for investment. तो इनके लिए ये आर्टिसंस और पेसेंट्री की अगर हम बात करें, हम इन लोगों की बात करें, तो उनका तो ज़िंदगी केवल और केवल 2 वक्त की रोटी में ही चला गया. देवर फ्रॉम हैंड टू माउथ. द पुअरेस्ट, आप समझ सकते हैं, द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ. सो दे वर द प्राइमरी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. जो प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन का काम करते थे, जैसे कि ये पेसेंट और आर्टिसन, तो इनके लिए तो केवल 2 वक्त की रोटी ही बस होती थी. यानी द पुअरेस्ट अमंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज. कौन से एडिशनल रिसोर्सेज? तो लाइक टूल्स एंड सप्लाईज. तो इनके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा ही बचता नहीं था, जिससे वो शायद अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते थे. द वेल्दियर पेसेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड. सो जो ज़्यादा धनवान थे पेसेंट, वो कुछ ऐसे आर्टिसनल ग्रुप्स जो ज़्यादा वेल्दी थे, वो द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, सिर्फ उन्हीं को ये फ़ायदा मिलता था. तो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं, द डिफरेंस, कि एक तरफ एक्सट्रीम रिच, एक तरफ एक्सट्रीम पुअर कंडीशंस, तो वो दोनों यहाँ एग्जिस्ट एक साथ कर रही थी. हालांकि आपने पहला सेंटेंस जो यहाँ देखा, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. सो सिर्फ एक तरफ से ही आपको ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है, बल्कि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उतना ही पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है सोसाइटी में हमेशा.
So this is what we are going to see even with the last paragraph. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elites, जो मुगल एलाइट्स इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी. सो आप समझ सकते हैं द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेस, और उन्हीं की वजह से जो ये 17th सेंचुरी में एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप्स कहे गए. एज द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे अब ये धीरे धीरे इनकी ऑथोरिटी कमज़ोर होने लगी. सो ही सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर. सो जो उनके सर्वेंट थे धीरे धीरे, जैसा हमने देखा, सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इंडिपेंडेंटली ये अपने आप को रूलर डिक्लेयर करने लगे. हालांकि फिर भी इन्होंने मुगल एम्परर को तो अपने मास्टर के तौर पे दे हैव ऑलवेज रिकग्नाइज्ड. एज यू कैन फाइंड हियर, दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध. और ऐसे प्रोविंसेस, ऐसे हिस्सों में हैदराबाद और अवध जैसी जगहों पे अपनी नई डायनेस्टीज इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी, ये सर्वेंट्स ने. ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर. फिर भी अपने आप को, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने के बावजूद इन्होंने एम्परर को तो अपने मास्टर के तौर पे हमेशा एक रिस्पेक्ट दिया ही है. बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड. धीरे धीरे अब ये इनका रूल कम होने लगा था. देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी, जिसके बारे में हम 10th चैप्टर में इसी साल पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दिस यू विल फाइंड अबाउट द एक्सरसाइज. सो before we start with that also, you are going to get this particular part in your homework. You should complete this exercise. You have to write it in your notebook also. But before that, I request you to learn the entire lesson, read the entire lesson very carefully. Any query, any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you for that. Keep learning.